Okay. Now, if you can see, today we will start with uh, a stronger version of pumping lemma. We saw the classical pumping lemma in which for any word which is greater than the number of states in the in any finite automata, we can always get a substring y, which we can always pump in between x and z, so that always and always we get words of that language. Okay, तो ये हम पंपिंग लेमा हमने देखी थी। और इसमें दे शुड बी अ वर्ड ऑफ फॉर्म एक्स वाई जेड, ठीक है, जहाँ पे वाई नॉन नल होगा और एक्स वाई रिस्ट पावर एन जेड जो होंगे सारे वर्ड्स होंगे इन एल। ओके, सो वी सॉ फॉर द लैंग्वेज ए एन बी एन what are the possibilities of y, ठीक है, y cannot be null because of this theorem, and there are three other possibilities. Either y could be all a's, okay, or y could be all b's, or y could be the substring ab. Okay, and if we try to pump solid a's into this string, then the string that we will get will be having more a's than b. So again, we won't be getting a word of word in that language if you try to pump y with solid a's. Okay, same thing holds for solid b's. You try to pump solid b's, then what will happen? Number of b's will be more than the number of a's. Again, you will get a word which is not in the language. Okay, third and the last possibility is that the y is substring ab. So if you pump this ab into this into the word xyz, then you will be getting multiple occurrences of ab. But if you look at the nature of this word, of any word in this language, it can only have one substring ab. Okay, and now we have cancelled out all the possibilities of y, and therefore pumping lemma doesn't hold for the language L, and therefore this language L is not regular. Okay, but same kind of reasoning cannot be given for other non-regular languages. For example, let us say we have the language palindrome. Okay, so the language palindrome, if you try to present a regular expression for palindrome language, you won't be able to find it. Also, if you try to find a DFA, you will fail. Or in other words, we know that palindrome is a not a regular language. Okay, but if you have to prove that palindrome is not a regular language, you will use pumping lemma. Okay, now let us say you have a word a b a. Okay, now this word is in the language palindrome, so you can get x equals to a and y equals to b and z equals to a. Now if you try to pump y, let us say you pump it once and you get x y y z. What is this string? This is a, then b b a. Again, this is a word in the palindrome language. So pumping lemma is, you can see the pumping lemma, it seems that pumping lemma is applicable to this language, and therefore you can say the pumping lemma is applicable, therefore the language palindrome is regular. But the matter of fact is that it is not a regular language. This is not a regular language. So where did we go wrong? Actually, we didn't. So we have to be using a stronger version of pumping lemma to prove that palindrome is not a regular language. Okay, so let us just see the definition of the stronger version of pumping lemma, and then we will see why palindrome is not a regular language. We will prove that palindrome is not a regular language using the stronger version of pumping lemma. Now, if you look at the definition, it is almost same, but what we have added over here is that we in the initial in the classic definition of pumping lemma,
we didn't talk about the number of states, okay, in the DFA that we are questioning. Okay, so in the definition of pumping lemma, we are going to concentrate on the number of states also. Okay, so let us say that you have a language L, it is an infinite language, and it is accepted by a finite automaton with n states. Then for all the W in L that have more than n letters, okay, if the word W has the length of W, this mod symbol will denote the length of a word. Okay, so if the length of this W is greater than equal to n, then there are strings of the form x, y, z where y is not null and where length of x plus y does not exceed n. ठीक है, तो जो यहाँ पे चीज ऐड हुई है, that is this fact that the length of x plus y together doesn't exceed n, the number of states in the automata. Okay, so previously we had only one condition, y is not null, then word of this form xyz and all the word of this form x, y, and z will be in the language L. But now we have added one more condition, that the length of x plus y will be less than n. Okay, the number of states in the automata. Okay, now why is this possible? This proof is in, it is already as a part or in the proof of the of our classic pumping lemma. So if we pick a word which is greater than this number of states, then there will be a loop somewhere in between, and that loop will always be, the loop, the automata will enter the loop when it encounters the first letter of this string y. Okay, and therefore the automata will enter a loop over here, and it will keep on pumping more y's in between, and still it will be able to give us valid words in the language if the language is regular. If it is not, then it will fail to give the word of the language, and we will always get some word which is not in the language, and we will prove that it is not, the language is not regular. Okay, so the only difference between classic and stronger version is that it is not actually a difference, it is a more observation of the initial definition of pumping lemma, that the length of x and y for any word x, y, z in the infinite language that we are talking about, the length of x plus length of y cannot exceed n. Okay, there will always be a word where the length of x, where the length of x plus length of y will be less than n. Okay, okay, now the rest of the definition is same. So if this condition holds, this condition will hold. Actually, it is not if, you cannot see there is any kind of if word over here. This condition will hold, and also these two conditions also hold together, that the word w, x, y, z and all the string of the form x, y and z will be in the language. Okay, तो एक्स वाई जेड भी लैंग्वेज में होगा, और वाई को चाहे हम कितना पंप करने बीच में, वो भी क्या होगा, लैंग्वेज में होगा. Now again coming back to the palindrome. Okay, if a question comes that you have to prove that the language palindrome is not regular, so you cannot use the first version of pumping lemma or the classical version, because if you do so, you can always get these combination of strings, or the string a b a. You can get the combination of x, y, z over here, and no matter how many times you try to pump y, you will always get a word which is in the language. Okay, because this abn is in the language palindrome. Okay, so the classical version of pumping lemma doesn't apply on the language palindrome. So to prove it concretely, we will use stronger version of pumping lemma. Okay, the version that we just saw, we are going to use that version to prove that the language palindrome is not regular. So how we can do that? So what we are going to do now is that we are going to consider
one of the FAs automata that might accept this language. Okay, if palindrome is again a regular language, if it is a regular language, then there will be an automata which accepts all the word in the language. Okay, and let us say that the machine we have in mind has 77 states. Okay, now this is just for you can say that why we are only taking 77 states and not any other number. So it turns out that what we are going to discuss will be applicable to any number of states. Okay, so just for the sake of this discussion, we are assuming that it has 77 states. It could have any number of states, but the argument that we are going to see uh, from now will be applicable to all those number of states. Okay, so it is true for 77 states. The argument will be true for 103 states and so on. So for the time being, let us say that the automata has some finite number of states. It will have some finite number of states. Let us put a number on that number of states, 77. Okay. Now, if it has 77 of number of states, then it has to, accept a palindrome which is of this, shape. Okay. It has 80 A's, then single B in between, and then 80 A's succeeding that number of B's. Okay. So there is A80, B80. Matlab A, it is repeating 80 number of times. Then you have B, then 80 A, succeeding B's. This is a palindrome. Okay. It must be accepted by this machine. Now, why we are interested in this kind of word is that this word has length greater than the number of states. If you have to look the length of this word, it will be 80 and 181, and then 80 plus 81, 161. So the number of words in this language, or the length of this language, is 161, which is greater than the number of states in the automata, which were 77. Okay. Now this is going to give us a more interesting observation about the machine and why such a machine is not possible. Okay. So the word is A80B80, and it has more number of words, more number of letters than the states in the machine. Then what will happen? First thing is this, that the word that we are taking will be accepted by the machine. So this word is in the language L. Okay. If this word is in the language L, or in the language palindrome, to be precise, then this word can be broken into 3 substrings X, Y, Z, where Y is not null, and all the words of the form X, Y, and Z will be in the language L. Okay, but there is a very strong observation that we can take from this from the stronger version of pumping lemma, that the length of X and Y will be less than the number of states. Okay, how many number of states are there? 77. Okay, so X plus Y will be less than 77. Now what does that mean? If the length of X plus Y is less than 77, it means X and Y, they comprise of only A's. Okay, you can see this is written in the second paragraph. Because the length of X plus Y is less than 77, but X, Y, Z is, look over here, X, Y, Z is A 80, then B, then A80. Okay, this is X, Y, Z. We said that we can break AB, this string, into 3 substrings X, Y, Z. Okay, uh, now also we know that the length of X plus length of Y will be less than 77, but this A is 80 times. The A, it is repeated 80 number of times. That means this X and Y has to be all A's. Okay, so this is what we get, this is what we observe from this property. If the length of X plus Y is less than 77, then X and Y will both be only A's. Okay, now if X and Y are all A's, then what will happen if we try to pump Y's in between X and Z? What will happen? X and Y was only A's,
Then if you try to pump y is also only a's, then there will be more number of a's in this palindrome than the number of a's which succeed this b. Okay, so the string will be of form a more 80 and more number of a's, then b, and then a80, and that word won't be a palindrome. Okay, so if you try to pump y in between, you will get a more than 80, a will be there, then the single b, and then a80. ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको ऐसा क्यों हुआ है. हमने वर्ड लिया था a80 b a80. ठीक है, हमने वर्ड लिया था. और स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा क्या कहता है, अगर वो वर्ड लैंग्वेज में है तो आप उसको एक्स वाई जेड में हमेशा ब्रेक कर सकते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई की लेंथ क्या है मिला के क्या हो, हमेशा क्या होगी, एन से कम होगी नंबर ऑफ स्टेट्स से. और नंबर ऑफ स्टेट्स कितने थे हमारे पास, 77 थे. ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स 77 है और एक्स प्लस वाई की लेंथ लेस देन 77 है, यानी एक्स और वाई क्या है, सिर्फ ए है. एक्स और वाई में ना बी आएगा ही नहीं, सिर्फ ए होगा. ठीक है, तो एक्स में भी ए है और वाई में भी ए है. ठीक है, अब जब आप इसको पंप करोगे, जब आप वाई वाई को पंप करेंगे बीच में, तो क्या होगा, हमने क्या किया, हमने और ए डाल दिया बीच में. ठीक है, तो जो बाद की स्ट्रिंग थी, ये वाली स्ट्रिंग तो अनटच रहेगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं. ठीक है, क्या चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा. और ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, इसमें और भी ए आ जाएंगे, तो इट देर विल बी मोर नंबर ऑफ ए देन 80. ओके, तो यहाँ पे ए बढ़ जाएंगे हमारे. अब ए यहाँ तो बढ़ गए, लेकिन यहाँ नहीं बढ़े. तो ये जो हमको वर्ड मिला है ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाद में ज्यादा, पहले ज्यादा ए हैं बाद से, तो इसलिए ये वर्ड क्या है, इट वोंट बी इन द लैंग्वेज पैलिंड्रोम. ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज में नहीं होगा. ठीक है, तो चाहे आप 77 स्टेट्स लो, चाहे आप कितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स लो, जब आप उससे बड़ा वर्ड लोगे, लेटर से कि हमें 77 ना लिया होता, आपने कोई और नंबर ले लिया होता, आप मुझे कोई नंबर दीजिए, मैं उस नंबर को लेके बताता हूँ कि वो क्यों नहीं पैलिंड्रोम बनेगा. आप कोई भी नंबर बताइए, कोई भी नंबर आप बोलते हैं कि सर नंबर हम लेते हैं लेटर से 15, मैंने बनाया है एक ऑटोमेटा और 15 लेंथ का है, और वो एक्सेप्ट करेगा इस पैलिंड्रोम को, तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा वर्ड ले लेंगे, इससे बड़ा वर्ड ले लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास कोई, हम तो बड़ा वर्ड कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी लैंग्वेज, आपका जो ऑटोमेटा है वो इनफाइनेटली कितने भी वर्ड्स जो हैं एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, तो हम कितना भी बड़ा वर्ड ले सकते हैं. हमने बोला कि हमने लिया ये वर्ड A17 एंड बी A17. ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर पंपिंग लेमा से क्या प्रूव कर लेंगे हम कि x प्लस वाई की लेंथ क्या होगी, इट विल बी लेस देन 15 होगी. फिर दोबारा इस आर्गुमेंट से क्या हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि x और y में क्या होंगे, सिर्फ a होंगे, सिर्फ एज होंगे. और जब हम एक्स वाई वाई जेड पंप करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा ए ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे ए क्या होंगे, सिर्फ 17 आ जाएंगे. तो फिर आपकी जो ऑटोमेटा जो आपने बनाई है 15 शीट की, वो ऐसा वर्ड भी एक्सेप्ट कर रही होगी जिसमें आगे जो जितने नंबर ऑफ ए हैं वो बाद के ए से मैच नहीं करते हैं फॉर दी दिस वर्ड. ओके, हो सकता है आपका जो पैलिंड्रोम, आपका जो आपने ऑटोमेटा बनाया है वो कुछ दूसरे वर्ड एक्सेप्ट करता हो सकता है वो इस टाइप के वर्ड एक्सेप्ट कर लेता हो, ये पैलिंड्रोम है. हो सकता है वो इस टाइप के वर्ड एक्सेप्ट करता हो, ये भी पैलिंड्रोम है. लेकिन वो ये नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. और इसलिए जो आपने रेगुलर जो आपने डीएफए बनाया वो क्या होगा, गलत होगा. और उस तरह के सारे डीएफए क्या होंगे, गलत होंगे. तो पंपिंग लेमा क्या होगा, इसमें एप्लीकेबल नहीं है, एंड देयरफॉर द लैंग्वेज इज नॉट, the palindrome language is not regular. Okay, so this you cannot prove using classical the first version of pumping lemma. अगर आप इसको किताब में लिख के आते हैं, if you get a question like this in your examination and you try to prove it using the classical version of palindrome, it will be wrong, it will be wrong, and you won't fetch any marks. So you have to be, you have to use a stronger version of this pumping lemma. Now if you haven't understood anything, if you have any questions in this discussion, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, मैं ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो. ठीक है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन यू कैन मेंशन इन
द चैट, इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. इफ इट इज क्लियर, प्लीज राइट yes, it is clear. If it is not, then we will proceed again. हम्म. क्वेश्चन आया है कि इनिशियल में ए रेस टू मोर देन 80 कैसे हो जाएगा, ठीक है. तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है. ये बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है आपका, और मुझे लग रहा था इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी. क्यों यहाँ पे मोर देन 80 आए, यहाँ पे मोर देन 80 क्यों आए, ठीक है. मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ. हमने क्या लिया, हमने जो ऑटोमेटा माना कि जो ऑटोमेटा पैलिंड्रोम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, उसमें क्या होंगे 77 नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, ठीक है. ये हमने मान लिया. अब हम इससे कोई भी बड़ा वर्ड चूज कर सकते हैं. हमने वर्ड क्या चूज किया, A80, B A80 चूज किया वर्ड हमने, ठीक. अब क्योंकि आपकी जो ऑटोमेटा है उसमें 77 स्टेट हैं, वो कितने भी इन्फाइनेटली कितने भी वर्ड जो है एक्सेप्ट करने चाहिए उस ऑटोमेटा को, ठीक है. और हमने क्या वर्ड फीड किया उसको, ये फीड किया A80, B A80. अब इस वर्ड के लिए क्या होगा, वी नो दैट द लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई, इसको आप एक्स वाई जेड के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है. और उसमें जो एक्स वाई होगा उसकी लेंथ क्या होगी, एन से कम होगी, नंबर ऑफ स्टेट से क्या होगी, कम होगी, ठीक है. तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने, 77. और हमारे पास पहले कितने ए हैं, 80 ए हैं हमारे पास. तो जो हमारा एक्स और वाई है वो क्या 77 से कम है. तो एक्स और वाई है क्या एक्चुअल में, एक्स भी क्या है, सॉलिड एज हैं, और वाई भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है. अगर आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में उसको ब्रेक करते हैं तो एक्स और वाई में क्या आएगा, सिर्फ ए आएंगे, क्योंकि एक्स और वाई की लेंथ क्या है, लेस देन 77 है, और यहाँ पे 80 तो ए ही है. तो ये क्या होगा, एक्स और वाई में क्या होंगे, सिर्फ ए होंगे. तो जब आप वाई को दोबारा पुश करोगे बीच में, एक्स वाई वाई जेड, तो क्या होगा, क्योंकि एक्स और वाई में सिर्फ ए थे तो वाई में भी सिर्फ ए ही रहा होगा. तो क्या होगा, एक्स वाई वाई में क्या होगा, ए बढ़ जाएंगे हमारे पास, और बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा. जेड में क्या आएगा, जेड में B80 होगा, या इसके बाद के जो ए बचेंगे 77 के बाद जो ए बचेंगे 3 ए और B80 होगा. तो वो तो उसको तो उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं. चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, आगे वाले ए में. आगे जो ए हैं वो बढ़ गए, ज़्यादा 80 से ज़्यादा ए हो गए, लेकिन पीछे क्या रहे, 80 की 80 यही रहे सिर्फ. तो हमको जो वर्ड मिला वो पैलिंड्रोम फॉर्म का वर्ड नहीं मिला, जो कि लेमा के मुताबिक मिलना चाहिए था. तो वो वर्ड हमको नहीं मिला है, इसलिए क्या हो गया, हमारा पंपिंग लेमा यहाँ पे क्या हो गया, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहा पैलिंड्रोम के लिए, और ये लैंग्वेज जो है आपकी रेगुलर नहीं रही. अब क्लियर हुआ आपको, दिव्यांश? किसी और को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. पंपिंग लेमा इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, ठीक है. तो इसमें एकदम से समझ में नहीं आता है, ये मैं मानता हूँ. मैंने खुद कई बार इस चीज़ को देखा है, तब जाके उतना आइडिया आता है कि कैसे क्या चीज़ हो रही है. तो द थिंग इज नॉट गेटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. You have to get confused correctly. Okay, that is what pumping lemma has will do with you. If you try to understand it, you will get confused. Okay, and you have to get confused correctly. ठीक है, तो आप करेक्टली कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ. अगर आप कोई दूसरी किसी और ही तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं, तब तो आपको आएगा ही नहीं समझ में, ठीक है. और ये मुझे तब पता लगेगा जब आप बताएंगे. तो अगर अभी तक किसी को परेशानी नहीं हुई है तो इट इज़ गुड. अगर हुई है तो आप पूछिए, क्योंकि आगे और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके, ठीक है. मैं कोशिश करूंगा कि इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो सॉल्व करवाऊँ, ठीक है. तो आई विल डेडिकेट अ एंटायर लेक्चर टू सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस which are in this subject regarding this chapter, ठीक है. बट अगर हम क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो इट वोंट बी एनी यूज. ओके, तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वी विल प्रोसीड. ओके, we will proceed with the next question. The question of this prime. Okay, prime is a language where
it is every word is of this form a raised to power p where p is a prime number. ठीक है, तो p क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, a रिपीट करेगा। तो p प्राइम नंबर, यू नो, 2 को हम प्राइम नंबर लेते हैं, then prime is 3, then prime is, you know, 5, then you have 7, then you have 11, then you have 13, and so on. So in this language जो number of a's हैं वो क्या होंगे, number of प्राइम नंबर के बराबर होंगे, नंबर ऑफ एज आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम्स, 2 और 3 और 5 एंड सो ऑन। सो इज प्राइम अ रेगुलर लैंग्वेज? इज प्राइम अ रेगुलर लैंग्वेज? दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, when you have done enough questions on this pumping lemma, you will, you know, come to know कि किस टाइप की लैंग्वेजेस रेगुलर होंगी, कैसे लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है हमारा इसको जानने का तरीका, अगर हम सिर्फ इसको देखना, कर्सरी एनालिसिस करना चाहते हैं इसकी। कई बार क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम गेट, जैसे गेट में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, बस आपको ऑप्शन दिए रहते हैं कि 1 2 3 4, और उसमें से कुछ लैंग्वेज बताई जाएंगी आपको, कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है, कौन सी नहीं है। तो इसको देखने का तरीका यही है कि अगर आप ये देखते हैं कि क्या हम मशीन से कुछ बहुत फैंसी काम करवाना चाह रहे हैं, अगर वो ज़्यादा फैंसी काम हुआ तो वो मशीन नहीं कर सकती है ऑटोमेटा, क्योंकि ऑटोमेटा क्या होती है, एक बहुत बेसिक मशीन होती है। तो नंबर प्राइम है, या फिर नंबर ए एन स्क्वायर के फॉर्म का है, या फिर नंबर पैलिंड्रोम है, तो ये क्या है, ये दीज आर ऑल, यू नो, फैंसी काइंड ऑफ टास्क दैट द मशीन, वी वांट द मशीन टू डू, but we know that it cannot handle all those kind of fancy tasks. Okay, तो उस इस रीजनिंग से आप कई सारी चीज़ों को जज करना लग जाएंगे, लेकिन ये भी तभी हो पाएगा जब आप पंपिंग लेमा को अप्लाई करना शुरू करें। ओके, सो लेट अस से कि प्राइम हमारे पास एक लैंग्वेज है, और हमको पता करना है कि लैंग्वेज प्राइम जो है आपकी रेगुलर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो सीधा स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहले तो ये कि भाई वीक पंपिंग लेमा का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, वीक नहीं बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे फर्स्ट वर्जन। ठीक है, इट इज़ नॉट वीक, इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा। फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वो जो प्रूफ है वो अपने आप में पूरा नहीं है। और पूरा का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एग्जाम्पल हमको ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे हम वो पंपिंग लेमा सेटिस्फाई हो रहा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, लेटेस्ट से हमने यहाँ पे लिया है कि हमने वर्ड लिया डब्ल्यू इज टू ट्रिपल ए। ठीक है, और आपने बोला कि इसमें इसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड में इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया एक्स हो गया हमारा ये ए, इस डबल ए को हमने ले लिया वाई, और जेड को हम नल मान रहे हैं फिलहाल। ठीक है, एक्स और जेड नल हो सकते हैं, वाई नल नहीं हो सकता है। तो एक्स वाई वाई जेड में क्या होगा, एक्स वाई वाई जेड में क्या होगा, ए आ जाएगा, और फिर वाई वाई क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और जेड क्या, नल। अब यहाँ नंबर ऑफ एज कितने हो गए, 5 हो गए, ये फिर प्राइम आ गया। अब हमको लगेगा कि ये पंपिंग लेमा यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, तो लैंग्वेज क्या रेगुलर है, जबकि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, तो वी कैन नॉट, यू नो, यूज दिस सॉर्ट ऑफ प्रूफ टू से दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। ओके, सो वी एज्यूम दैट देयर इज अ एफए फॉर प्राइम। अगेन हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स ले रहे हैं, कुछ 345 स्टेट्स हमने लिए। हम मानते हैं कि हमारे एफए में कितनी स्टेट्स हैं, 345 स्टेट्स हैं। और हमने क्या किया, वी हैव चूजन अ प्राइम नंबर बिगर देन 345। ठीक है, प्राइम नंबर 345 से बड़ा क्या होता है, 347 होता है। ओके, अब क्योंकि ये ऑटोमेटा 345 स्टेट्स का है, और हमारे पास हमने जो प्राइम नंबर लिया है वो, उसकी लेंथ 347 है, इसकी लेंथ क्या है, इससे ज़्यादा है। और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए मशीन ने। ठीक है, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा वर्ड हो, कितना बड़ा प्राइम नंबर हो, क्योंकि मशीन प्राइम नंबर्स को एक्सेप्ट करती है, तो इस वाले वर्ड को भी एक्सेप्ट करेगी जिसमें नंबर ऑफ एज क्या है, दे आर 347। देन व्हाट डज दैट मीन कि ए 347 को वी कैन ब्रेक इनटू एक्स वाई एंड जेड। एक्स और वाई और जेड में क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं सच दैट एक्स वाई एंड जेड इज इन प्राइम। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ, any value of n starting from n is equal to 1, and it could be anything,
ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एन को क्या लिया है, एन को मान लेते हैं 348, क्योंकि कोई भी एन कितने नंबर भी हम पंप करेंगे बीच में इसको, वो वर्ड हमेशा क्या होगा, लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन को मान रहे हैं 348। तो पंपिंग लेमा के हिसाब से क्या होगा, द वर्ड x3 x y 348z इट शुड बी इन प्राइम। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई एन जेड प्राइम में होगा, तो एन को 348 मान रहे हैं, तो ये वर्ड क्या होगा, इट विल बी इन द लैंग्वेज प्राइम। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई 348z जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं इस तरीके से, एक्स वाई जेड और वाई 347। तो वाई वन यहाँ पे है और 347 हो गया 348 एक्स और वाई। तो हम ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, सिर्फ ए ही है, तो ये रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है कि इन दोनों ए को मैं यहाँ ले लेता हूँ और इस ए को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ए डबल ए ए। तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे चेंजेस, क्योंकि सब क्या है, सबका सब ए ही है। तो इस तरह का रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड हमने लिया यहाँ पे और वाई हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको दिखने लगेगा कि क्या होने वाला है। एक्स वाई जेड क्या है, दिस इज ए 347, एक्स वाई जेड इज योर ए 347। और वाई क्या है हमारा, वाई इज सम नंबर ऑफ एज, नल नहीं है वाई, वाई नल नहीं है, वाई कुछ नंबर ऑफ एज है जिसको मान लेते हैं एम है। ठीक है, सो ए तो एक्स वाई जेड तो आपका हो गया ए 347, और वाई क्या हो जाएगा, ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर 347, दिस विल बी 347 एम। और ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी अब, दिस विल बी ए 347 प्लस 347 एम, यानी कि ए 347 1 प्लस एम। तो जो हमने पंप किया है वर्ड, वो वर्ड किस फॉर्म का आ गया है, ए रेस्ट पावर 347 1 प्लस एम, इस फॉर्म का आ गया। अब ये क्या है, दिस इज मल्टीपल ऑफ सम नंबर, दिस इज अ मल्टीपल, दिस नंबर इज a multiple of 1 plus m, or it is multiple of 347. This number is not prime, this number is not prime because it is, it has factors other than itself. ठीक है, so this is not a prime number, so you get a word which is not a word. When you try to pump y in between, you get a word which is not of this form, and therefore the pumping lemma is not applicable to this language, and therefore prime is not a regular language. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने लिखी थी वो यहाँ पे आ रही है। तो एक्स वाई जेड को हमने इस फॉर्म में लिखा था, वाई 347 अलग हो गया था, तो एक्स वाई जेड इट वॉज ए 347, और वाई का था, वाई वॉज सम नंबर ऑफ एज ए रेस्ट पावर एम। ठीक है, तो वाई को हमने ए रेस्ट पावर एम की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 347 एम, एंड यू गेट 347 प्लस 347 एम, एंड यू गेट 347 एम प्लस 1। तो ये मल्टीपल की फॉर्म में आ गया है। और ये जो नंबर है ये क्या है, इट इज नॉट प्राइम, दिस नंबर इज नॉट प्राइम। जबकि पंपिंग लेमा के हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये प्राइम होना चाहिए था, लेकिन ये प्राइम नहीं रहा। तो हमारा जो लैंग्वेज प्राइम है, इट इज नॉट रेगुलर। ठीक है, तो प्रूफ कैसे हुआ इसको, अगर अगर आप देखिए प्रूफ हमने कैसे किया, हम पहले मान, क्योंकि प्रूफ प्रूफ का टेक्निक अभी भी चेंज नहीं हुआ है हमारे पास। ठीक है, प्रूफ की टेक्निक अभी भी वही है कि हम एक कॉन्ट्राडिक्शन एक मान के चलते कैसा होगा, और फिर आगे जाके उसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि प्राइम नंबर प्राइम होगा, ए रेस्ट पावर प्राइम क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज होगी, तो आगे कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, हमको नंबर क्या मिलेगा, कॉम्पोजिट मिलेगा। इसका उल्टा होना चाहिए, अगर हम प्राइम मान के चल रहे हैं तो आगे जब हम प्रूफ करते रहेंगे तो क्या होगा, हमको वो नंबर क्या मिल जाएगा, कॉम्पोजिट मिल जाएगा। दैट इज से कि अगर हम मान के चल रहे हैं कि ए एन स्क्वायर फॉर्म का जो वर्ड है ये रेगुलर नहीं है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये रेगुलर है कि नहीं है, तो क्या होगा, एन स्क्वायर की फॉर्म का नहीं आएगा, वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एन स्क्वायर की फॉर्म का नहीं आएगा। हो सकता है वो नंबर क्या हो, दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे आगे जाके। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट कि हमको उल्टा सोच के चलना पड़ेगा, और हम उस उल्टी वाली चीज पे क्या करेंगे,
कन्वर्ट कर जाएंगे। तो जैसे हमने प्राइम के लिए लिया, हम मान के चले प्राइम होगा, और आगे जाके वो क्या मिलेगा, वो क्या मिलेगा, उसका उल्टा मिलेगा, कॉम्पोजिट नंबर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ। हम क्या मान के चले थे प्राइम, आगे जाके क्या मिला हमें, कॉम्पोजिट मिला। तो यहाँ से क्या होगा, आपको एक मैप पता लगेगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है, क्योंकि टेक्निक देखो आप चेंज होती रह रही है हमारी। इससे पहले जो हमने पैलिंड्रोम प्रूफ किया, वो हमने अलग तरीके से प्रूफ किया, यहाँ पे जो ये प्रूफ किया ये भी थोड़ा अलग प्रूफ हुआ। लेकिन सब में क्या है, एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि हम पहले नंबर ऑफ स्टेट्स फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जो हम वर्ड लेते हैं वो क्या करते हैं, उस नंबर ऑफ शेड से ज्यादा का वर्ड हम लेते हैं, और फिर हम उसमें वाई पंप करके देखते हैं और ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि जब वाई हम पंप कर रहे हैं तो जो वर्ड बन के आएगा वो उस नेचर का कभी नहीं होगा जो नेचर का एक्स वाई जेड था, हमेशा उसका कुछ उल्टा निकल के आएगा। तो जो हमारा प्रूफ है क्या होगा, इट विल बी मोर जनरल इन नेचर, ज्यादा जनरल इन नेचर होगा, और इसलिए वो करेक्ट प्रूफ होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? समझ में आया आपको डिस्कशन? Well, this is correct what Shivam has shared, that the language is not regular because it is of non-linear power. ठीक है, तो ये नॉन लीनियर पावर वाले जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो लैंग्वेज कभी रेगुलर नहीं होती। नॉन लीनियर पावर का मतलब क्या है कि अगर हम बोलते हैं ए रेस्ट पावर, जैसे यहाँ बोला हमने प्राइम, अभी लीनियर पावर नहीं रही है, इट इज नॉट ए लीनियर पावर, इट इज समथिंग एल्स। सिमिलरली ए एन स्क्वायर जो होगा ये भी लीनियर नहीं है, दिस इज क्वाड्रेटिक। इन द सेम मैनर ए रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो नॉट नॉन लीनियर। तो इस टाइप के जो वर्ड होंगे ये क्या होंगे, कभी भी रेगुलर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से आप क्वेश्चन तब सॉल्व कर सकते हैं जब ये ऑब्जेक्टिवली आए कि इन चार लैंग्वेजेस में से कौन सा लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप ये जो एजम्पशन है इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आता है कि आपको इसको प्रूफ करना है, और अभी जो पेपर आपके होंगे अगर होंगे तो दे विल बी थ्योरेटिकल इन नेचर, तो वहाँ पे आपको थ्योरेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा, और तब ये प्रूफ आप वहाँ नहीं लिख सकते हैं कि ये नॉन लीनियर पावर का है तो हमेशा ऐसा ही होगा। आपको इस तरीके से पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। यू कैन ओपन योर माइक एंड आस्क इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। इस पे हम पूरा एक दो लेक्चर और डेडिकेट करेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तब आपको धीरे धीरे और क्लियर होता है ये रहेगा। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स we will be taking the questions on the exercise. Okay. Other questions? ये शिवम ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, इसको कल कल देखेंगे इसको। ठीक है, इट विल टेक सम मोर काइंड ऑफ डिस्कशन, उसको वी विल डिस्कस। ओके, तो एक पूरा लेक्चर वी विल डेडिकेट फॉर ओनली क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं, चेंज होता रहता है उनमें, प्रूफ करने की टेक्निक एक नहीं रहती है। तो we will have to solve all the possible proof techniques for the pumping lemma. Okay, so that is all for today. Okay, we will meet again, और अगली बार हम we will see the questions. Okay, only questions, nothing else. So that lecture will be very important। अगर आप तो अब तक समझ में नहीं आया है तो उस एग्जाम्पल जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।